बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और जो कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है काउंटिंग साइकिल का, एंड कैप्चरिंग डिफरेंट इवेंट्स। एंड बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड द मेन 4 steps of the accounting cycle, and now we are discussing the different financial statement which we have already discussed, that these are the main source of information for all of our end users. Means that the owners, creditors, management, employees, customers, and etc. So the main learning objective which we will discuss, that is the nature and journal purpose. The first learning objective that explain the meaning, nature, and journal purpose of financial statements, and why these are
Financial statements of a company reflect a true picture of our financial performance. Basically, it depicts not only the profit and losses but also its assets, liabilities, owner's equity. So, financial statements are considered the main important source of information for all the users. So it not only at the end of all accounting processes, which we have Second discussed learning that before objective that we have क्या है to कि explain the certain record accounting all the principles transactions that in are journal, important then for we post understanding them in of the ledger, financial then we make the trial in balance. financial statements After को making the trial comprehend balance, we करने have के to लिए make understand the करने के लिए adjustment for जरूरी है certain item. कि For आपके example, पास for accounting accounting knowledge होना expenses चाहिए और accounting and principles के बारे में पता होना चाहिए. after that we क्योंकि made the professional adjusted trial judgment जो balance. है So after making accountant adjusted की trial बहुत balance we affect have to करती है prepare by the the financial application of statement. those principles. And there are four So accountant basically prepare financial statements, and they don't have to apply their rules by their own willingness. No, there are standardized rules and regulations which we have already Third discussed. objective That generally is accepted that accounting demonstrate how principles different and business they are given by transactions the standardized affect the elements professional of accounting accounting bodies. equation. Dear student, we have already discussed the accounting equation, which is that assets is equal to liabilities plus owner's equity, and there are basically three main elements of the accounting equation. And a transaction basically where that brings an increase or decrease in the total assets definitely would bring increase in total liabilities and owner's equity. So any transaction which brings decrease in the total assets simultaneously will also decrease the total assets and liabilities. Simple words में अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि अगर एसेट में इंक्रीज आता है तो डेफिनेटली लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में भी वो इंक्रीज का इफेक्ट आएगा. इसी तरह अगर एसेट्स में डिक्रीज आता है तो लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी यानी कि इक्वेशन की दूसरी साइड भी बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसी तरह ही इफेक्ट होगी. So some transactions increase one assets and reduce another. और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं. हमने जब जनरल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जिसमें आपकी एक ही ट्रांजैक्शन में आपका एक एलिमेंट इफेक्ट हो रहा था या एक या दो एलिमेंट इफेक्ट हो रहे होते थे अकाउंटिंग इक्वेशन के. Regardless of the nature of the specific transaction, the accounting equation must stay in balance at all the time. चाहे आप ये कह लें कि कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटीज या ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज आएगा. इसी तरह कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें डिक्रीज आ रहा है एसेट में तो लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में डिक्रीज आएगा. कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं कि जिसमें एक में इंक्रीज आता है दूसरी में डिक्रीज आता है. तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका इफेक्ट तो है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है दैट दीज मस्ट बी इक्वल. इट मींस दैट एसेट्स की जो अमाउंट होती है वो लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के अमाउंट के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को इक्वल रहना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस एट ऑल द टाइम्स. जो हमने नेक्स्ट अपना लेक्चर पढ़ना है उसमें स्लाइड में, तो उसमें हमारे यही डिस्कस करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, कि दैट एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी. और इसी इक्वेशन और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट. So the fourth objective that explain the statement of financial position जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं. Basically this is an you can say the expansion of the basic accounting equation.
हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रख के ही हमने ये स्टेटमेंट जो है वो ड्रॉ करना है। कैसे ये स्टेटमेंट ड्रॉ होगा इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट है क्या। अगर आपसे कोई पूछे तो या उसको डिफाइन करना पड़ जाए तो आपने उसको क्या बताना है, बेसिकली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट दैट प्रेजेंट्स इन अ ग्रेटर डिटेल द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन से एलिमेंट्स हैं कि आपको जो बैलेंस शीट है इसमें किन चीज़ों का रिकॉर्ड मिलेगा, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का और ओनर्स इक्विटी का। So various types of all the assets are listed and totaled। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स क्या हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। इसी तरह हमने बैलेंस शीट में भी रिकॉर्डिंग एसेट्स की वैसे ही करनी है। मींस कि अगर एसेट्स की अगर आपने हेडिंग दी है तो सबसे पहले हमने एसेट को जिस तरह डिवाइड करते हैं कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, या जिनको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। जो हमारे करंट एसेट्स हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिनकी लाइफ टाइम जो है वो लेस देन 1 ईयर होता है, और नॉन करंट एसेट जिनकी लाइफ टाइम जो है वो मोर देन अप टू 10 या मोर देन 10 ईयर्स होती है। तो करंट एसेट्स को हम टोटल करेंगे, फिर नॉन करंट को टोटल करेंगे, फिर नॉन करंट और करंट दोनों की जो अमाउंट होगी उनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स की अमाउंट आएगी। ठीक है, जितने भी टाइप्स के एसेट्स हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज में जो उसकी करंट लाइबिलिटीज हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को हम लोग ऐड करके टोटल करेंगे, और फिर जो हमारी ओनर्स इक्विटी की अमाउंट है उसके साथ ऐड करके हम देखेंगे कि क्या अमाउंट आई है। तो ये इसकी अमाउंट लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स। मींस कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। So the balancing feature of this financial statement is one of its dominant characteristics because the statement is simply an expansion of the basic accounting equation। हम कह चुके हैं कि assets की जो amount है वो liabilities और owners equity की amount के equal होनी चाहिए। Next slide में हम देखते हैं कि इसी accounting equation की base पे हम कैसे अपनी balance sheet को draw करेंगे। ठीक है, सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि आपसे कोई ये कहे कि बैलेंस शीट क्या है या ये पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखें तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एक्चुअली द बैलेंस शीट। So that lists the 3 main components: assets, liabilities and owners equity। हाँ, ये अलग बात है कि आपने जो assets, liabilities और owners equity के जो स्टेटमेंट बनाई जाती है बैलेंस शीट, ये नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आपने बना लिया। No, these are prepared at some specific point of time। Means that all these financial statements are prepared at the end of the year। तो लास्ट जो ये मंथ होता है हमारा साल का दिसंबर में, तो दिसंबर की क्लोजिंग में तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। So balance sheet is most important of the 3 main financial statement which is basically used to describe the health of any organization। You can say financial position, their financial health, to describe all of these, balance sheet is the most important one। So the statement of financial position or balance sheet represent in greater detail the basic accounting equation, and in accounting equation 3 main component: asset, liabilities and owners equity are given at some particular point of time। So it's very important to describe the financial health and financial position। You can also say that the balance sheet shows a snapshot of a particular date in time for any organization। So here is a sample for an organization। There is a journal format, you can say। Dear students, whenever you will make any statement, you have to start with the 3-row heading। 3-row heading का मतलब क्या होता है कि जो उसमें आपने बिल्कुल टॉप पे स्टेटमेंट के फर्स्ट लाइन में आपने उस कंपनी का नेम लिखना होता है, सेकंड में आपने उस स्टेटमेंट का नेम लिखना होता है। जिस तरह यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन में जो है कंपनी का नेम मेंशन है, सेकंड लाइन में आपने स्टेटमेंट का नेम लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो सेकंड में हमारी बैलेंस शीट होगी, और थर्ड लाइन में आपने बताना है कि कौन से टाइम पीरियड के लिए आप ये स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो हमने ये लिखना होता है कि फॉर द ईयर एंडेड एट December 31st। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस ईयर के लिए बना रहे हैं आपने वो साथ में मेंशन करना है।
दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं बैलेंस शीट स्पेशल। एक को हम कहते हैं वर्टिकल, एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रख के बनाई जाती है, और जिसमें हम लोग मीन्स के जिस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी जो एसेट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं और लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वेशन की राइट साइड पे हैं, तो इसी तरह हम स्टेटमेंट भी इसी तरह ड्रा करते हैं कि अपना जो टेबल है, टेबल को की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे अपने तमाम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो उसकी राइट साइड है वहाँ पे हम लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज दी हॉरिजेंटल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट ये होता है कि पहले आपने एसेट्स लिख लिए, फिर उसी के नीचे ही आपने स्टार्ट कर देना होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि सिंगुलर वन कॉलम में जब आप एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में एक ऑडियंस के लिए आई कैप्चरिंग जो है वो ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करता है। तो ये मोस्टली जो है अडॉप्टेड है एंड एप्लीकेबल है जस्ट टू ईज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। So here first of all we will record the assets. You will have to given the headings. सबसे पहले आपने 3 रो हेडिंग दे के फिर आपने नीचे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करना है कि कौन सी हेडिंग दे रहे हैं एसेट्स की। अब एसेट्स में सबसे पहले आपने करंट एसेट्स की हेडिंग देनी है कि करंट एसेट की अमाउंट में, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब करंट एसेट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, आपने कोई भी एसेट खुद की मर्जी से उठा के पहले नहीं लिख देना। तो जो उसकी कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है करंट एसेट की, वो आपने वैसे ही रखनी है। हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि मोस्ट लिक्विड एसेट हमारा जो है कैश है, उसके बाद हमारे जो है रिसीवेबल्स होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, प्रीपेड हैं, फिर इन्वेंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो कैश की अमाउंट को लिखना होता है, जो भी उसकी अमाउंट है, ठीक है, वो आपने राइट साइड पे जाकर लिखना है। फिर उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं वो आपने लिखनी होती हैं, जिस तरह टी बिल्स हैं, आपके टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आपके रिसीवेबल्स कौन से होते हैं कि मीन्स आपने किसी को कस्टमर को जो चीज़ उधार पे बेची है और उसको टाइम पीरियड दे दिया कि आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 6 मंथ जो है आपने मुझे पेमेंट करनी है, तो आपने चीज़ तो बेच दी है लेकिन आपने अभी पेमेंट कैश में रिसीव नहीं की, तो ये आपके डेटर्स होते हैं जिनको हम रिसीवेबल्स भी कहते हैं। ये हमारे बेसिकली एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स। तो उसके बाद ये 3rd नंबर पे आएंगे। आपने ये नहीं करना कि रिसीवेबल्स को उठा के तो कैश वाली जगह पे लिख देना, नहीं, कैश सबसे टॉप पे होते हैं, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, उसके बाद आपके रिसीवेबल्स आएंगे, ठीक है। फिर आपके अच्छा रिसीवेबल्स भी 2 तरह के होते हैं। अगर आपने कस्टमर को चीज़ जुबानी कलामी बेची है तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्बल कमिटमेंट की है, तो उसके हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपने एक रिटन कमिटमेंट किया है, किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उससे उसके सिग्नेचर लिए हैं, फिर जाके आपने उसको चीज़ बेची है एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट लीगल पेपर पे, उसे हम कहते हैं नोट रिसीवेबल्स। तो 2 तरह के रिसीवेबल्स होते हैं। अगर कोई भी गिवन होता है तो उसने आपने की अमाउंट को मेंशन करना है। इसी तरह फिर आपके प्रीपेड्स हैं और 4th आपकी इन्वेंट्री है। ऑल दीज आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, देन यू विल टोटल्ड all the current assets amount, ठीक है। फिर इसके नीचे हमने लिखना है नॉन करंट एसेट्स को, या जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट में सबसे टॉप पे जो हम लिखेंगे वो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग्स की जो अमाउंट होती हैं उनको आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपकी मशीनरी जो है ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लिखना, जिस तरह उसकी क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक ही आपने बैलेंस शीट में इन एसेट्स की लिखना होता है 1 by 1। तो सबसे टॉप पे जो है लैंड बिल्डिंग है, फिर मशीनरी है, फिर प्लांट इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गए, मर्चेंडाइजेज हैं, डिफरेंट जितने भी एसेट्स हैं तमाम इनको आपने लिख के जो उसकी कैटेगराइजेशन है फिक्स्ड एसेट्स की, इन तमाम को आपने टोटल करना है। अब टोटल करंट एसेट्स और टोटल फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, टोटल एसेट्स होंगे। अब टोटल एसेट्स को इक्वल होना चाहिए किसके, लायबिलिटीज के और ओनर्स इक्विटी के अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम अपनी टेबल की जो राइट साइड है वहां पे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो लायबिलिटी की जिस तरह करंट, जिस हमने एसेट्स को डिवाइड किया करंट और फिक्स्ड में, इसी तरह लायबिलिटीज की भी अमाउंट को अपने करंट और फिक्स्ड में डिवाइड करना है। तो करंट में भी जो आपके नोट पेएबल हैं या अकाउंट पेएबल है, यानी कि जिनसे आपने उधार लिया हुआ तो उनको पे करना है। तो जिनसे आपने जुबानी कलामी कमिटमेंट की होती है वो आपके अकाउंट पेएबल्स हैं, जिनसे आपने लीगल रिटर्न कमिटमेंट के तौर पे आपने उधार लिया होता है वो आपके हैं नोट पेएबल। तो जिनको आपने 1 साल के अंदर आपने पे करना होता है। ये आपकी हो गई टोटल करंट लायबिलिटीज। फिर आपकी होगी नॉन करंट लायबिलिटीज, जिन पे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, आपकी जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी हैं उन तमाम को आपने इधर लिखना होता है, उनकी लिस्ट आपने यहाँ पे 1 by 1 लिखना है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज और टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, टोटल
टोटल लायबिलिटीज। फिर उसके बाद आपने जो थर्ड एलिमेंट है ओनर्स इक्विटी का, वो आपने इसमें ऐड करना है, जो भी आपका कैपिटल होगा वो आपने ऐड करना है। फिर आपने टोटल लायबिलिटीज और जो ओनर्स इक्विटी है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट अमाउंट आएगी वो क्या होगी, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। तो ये दोनों साइड्स को इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारी जो बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। डियर स्टूडेंट, ये तो था एक जर्नल फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है। इसी फॉर्मेट को सामने रख के जब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करने हैं या असाइनमेंट्स के लिए जो भी क्वेश्चन आपको देंगे वो आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपने सॉल्व करने हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। Basically, what is the main interpretation of the balance sheet? So basically this tells us that do we have enough working capital to avoid cash flow problem। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का आपको बताएं कि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि when you deduct the current liabilities from current assets, कि करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है जो आपके डेली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए एक अमाउंट जो है वो फिक्स की जाती है। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है, इतना है कि हमारे पास कैश फ्लो की पोजीशन कितनी है, कि हमारे जो डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनफ है या नहीं है। तो इस आंसर को क्वेश्चन करने के लिए जो है हम बैलेंस शीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो नेक्स्ट क्या होता है कि आर वी मेकिंग इनफ यूज ऑफ अवेलेबल ट्रेड क्रेडिट। पता चलता है कि आपने जो उधार लिया हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कितना आपने लिया हुआ है और ये आप इस काबिल हैं, आपकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है कि आपके टाइम पे जो है अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको उधार टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन जो आपका है कि डेटर्स, यानी कि जिनको आपने उधार पे माल बेचा होता है, वहां से आपको पता चल सकता है कि किस टाइम तक जो है आप अपना जो है जिनको बेचा हुआ था उधार पे पेमेंट रिसीव कर लेंगे, क्योंकि आप वहां से पेमेंट रिसीव करते हैं अपने डेटर से और फिर इधर से क्रेडिटर को आपने पे करना होता है जिनसे उधार लिया होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह की चल रही होती हैं, ये जरूरी नहीं होता कि आपने कैश की सारा कुछ बनाया और आपने बेच, क्योंकि उधार पे भी अगर आपने कमिटमेंट की हुई है तो उधार लिया भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस पे डिफरेंट स्टेप पे फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो उधार लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उधार लिया था या लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इन तमाम आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो है बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह आपने जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। The balance sheet items for example any company ABC, so as of December 31st 2010 means that at the end of the year you are going to make the balance sheet. So these are the journal items which are given in a table. So on the basis of these amounts you have to prepare a balance sheet according to standardized format। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पहले 3 रो हेडिंग देनी है, फिर आपने करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, फिर आपने लॉन्ग टर्म को, और राइट साइड पे आपने लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को। यहाँ पे आप देखेंगे लैंड सबसे ऊपर गई हुई है, फिर उसके बाद अकाउंट पेएबल है, फिर अकाउंट रिसीवेबल है, कैश सबसे आखिर में लिखा गया है। फिर आप राइट साइड पे देखें तो ऑफिस इक्विपमेंट्स है, मींस कि इधर सारा जो डाटा है वो रैंडम फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट इक्वेशन जो उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है आपने उसमें इसको सही से पुट करना है इस डाटा को और अमाउंट को इक्वल करना है। ये देखें कि जब आप इस तमाम डाटा को सॉल्व कर लेंगे तो किस तरह बैलेंस शीट आपके सामने आएगी। देखें आपने सबसे पहले ऊपर 3 रो हेडिंग देनी है जिस तरह हमने दे दी। लेफ्ट साइड पे हमारे एसेट्स हैं और राइट साइड पे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी हैं। एसेट्स में हमने सबसे पहले करंट एसेट में सिर्फ इन 2 की ही अमाउंट गिवन थी, कैश की और अकाउंट रिसीवेबल की, मीन्स के इस क्वेश्चन में। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कौन से उसने करंट एसेट इस टाइम यूटिलाइज किए हैं। तो उन तमाम की
भी आप जो है अमाउंट लिख के आपने उनको ऐड करना है। फिर नॉन करंट एसेट्स देखने हैं, मींस के लैंड की अमाउंट इसमें गिवन थी, बिल्डिंग थी, ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट थी, उन दोनों को आपने जितनी भी हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स आपने उन तमाम को ऐड कर देना है। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स को और टोटल करंट एसेट्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, टोटल एसेट्स की। फिर हम चलते हैं अपने राइट साइड पे इक्वेशन की, जहां पे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की अमाउंट को आपने रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे मेंशन दो चीजों की अमाउंट गिवन थी, अकाउंट पेएबल एंड नोट पेएबल। तो उन दोनों की अमाउंट को आपने टोटल कर देना है। फिर अगर नॉन करंट लायबिलिटीज की अमाउंट गिवन है तो आपने उसको लिखना है। इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज की अमाउंट नहीं मेंशन थी, तो वो हमारा जो कॉलम है वो ब्लैंक जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आते हैं जी कैपिटल की तरफ। तो कैपिटल की अमाउंट गिवन थी, वो हमने मेंशन करके अब इनको दोनों को टोटल करना है, कि इनको कैपिटल को और टोटल करंट लायबिलिटीज को। तो देखें एसेट्स की अमाउंट इक्वल है टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के। इट मींस दैट आवर अकाउंटिंग इक्वेशन stay balanced. So on the basis of the accounting equation we have to construct the balance sheet. Balance sheet basically depicts the firm's financial position, its financial health. So dear student, this is the format, and we have also practiced an example question for your understanding. So okay, now here the given total equity was not given, so from the data we have calculated, because we have calculated the total assets, the total liabilities, and then we arrange the equation according to mathematics rule, and we have calculated the owner's equity, because in our question owner's equity amount was not given. So we have calculated and then we put it on the balance sheet statement. So if any amount is not given in your question, so you can calculate that amount, क्योंकि फार्मूला में अगर 3 चीज़ों पे है तो 2 का गिवन है तो तीसरे की आप अमाउंट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में एसेट्स की और लाइबिलिटीज की अमाउंट गिवन थी, ओनर्स इक्विटी की नहीं थी, तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करके थर्ड वन की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो दीज आर वेरी सिंपल, सेम यही फॉर्मेट चलेगा, बस थोड़ा हर एक में एक ऐसी टेक्निकलिटी है कि आपने उसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जो फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था बैलेंस शीट, हमने उसको डिस्कस किया, दैट व्हाट इट इज, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इट्स इंपॉर्टेंस। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर स्टेटमेंट। टिल देन थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।